Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English, let's begin with our next chapter, which is Black Beauty. Learning objectives: understand that courage, perseverance and the power of kindness are timeless. Understanding life journey of a horse named Black Beauty. बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक वार्म अप एक्टिविटी हमें दी गई है, वो हम कर लेते हैं. Look at the pictures of horses below. One is a real horse and one is the toy horse. Compare and contrast the two horses, thinking about the characters trait both can have. Directions: look at the pictures of horses below. One is a real horse and one is a toy horse. Compare and contrast the two horses, thinking about living and non-living traits. Circle the traits the two horses share. लिविंग हॉर्स, नॉन लिविंग हॉर्स. बच्चों यहाँ पे आपको दो हॉर्सेस की पिक्चर दिख रही है ना. एक हॉर्स जो है वो लाइव हॉर्स है एंड दूसरा हॉर्स कौन सा है, वो एक टॉय हॉर्स है. तो आपको इनके बारे में नीचे लिखना है कि लाइव हॉर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है, और टॉय हॉर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो क्या क्या कर सकता है. तो बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप खुद से करेंगे. अब हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले स्टोरी के राइटर के बारे में पढ़ लेते हैं. एना स्वेल 1822 to 1878 was an English novelist best known for her juvenile novel Black Beauty, which was published in 1877. She had developed a strong love for animals from an early age. She cared for animals and never tolerated any form of cruelty towards them. Her desire to see them well treated motivated her to write one of the most loving animal stories of 19th century. बच्चों यहाँ पे स्टोरी की राइटर का नाम क्या है, एना स्वेल, जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट है और वो अपने जुवेनाइल नॉवल ब्लैक ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. ठीक है, इनके जो लव था वो एनिमल्स के लिए इतना ज़्यादा था कि ये ज़्यादातर अपनी जो किताबें थी ये एनिमल्स के ऊपर ही लिखती थी. मतलब ये एनिमल से बहुत प्यार करती थी और हमेशा एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट रहा करती थी. अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं. ब्लैक ब्यूटी. ब्लैक ब्यूटी इज़ ऑल अबाउट अ स्मार्ट ब्लैक हॉर्स हु नरेटेड्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ in his own words. This extract is about how he started his carefree life as a colt on an English farm and how his mother prepared him for work before he was sold. Let's read this extract to know about Black Beauty's early life. बच्चों ये जो स्टोरी है ये कौन सुना रहा है, एक छोटा सा नन्हा सा हॉर्स सुना रहा है जो अभी भी पैदा हुआ है. ठीक है, और वो बताता है कि मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे से शिक्षाएं दी हैं, अच्छे से मुझे वेल मैनर हॉर्स बनाया है ताकि मुझे आगे क्या हो, बड़े होके और बड़े बड़े काम करने होंगे. द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज pleasant meadow with a pond of crystal clear water in it. Some shady trees leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. Over the hedge there was a field on one side, and on the other side we looked upon a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a plantation of fir trees, and at the bottom a running brook overhung by a steep bank whistled. I was young. I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime I ran by her side, and at night I used to lie down beside her. When it was hot we would stand under the shade of trees near the pond. When it was cold we would stay in a warm shed near the plantation. बच्चों वो बता रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, एक बहुत बड़ा बाड़ा है, फार्म है, हम वहाँ पे रहा करते हैं. वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रास लैंड्स हैं जिन्हें हम दिन भर क्या करते हैं, चरते हैं. लेकिन वो कहता है मैं तो अभी छोटा सा बेबी हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मम्मा का मिल्क पीता हूँ, अभी मुझे घास खाना आता ही नहीं है. तो मेरी मम्मा घास चरती है और जो मेरे मास्टर है वो हमारे लिए तरह तरह का खाना लेके आते हैं और हमें अच्छे से पानी वगैरह पिलाया जाता है. मतलब हमारी बहुत केयर वहाँ पे की जाती है. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work
in the daytime and came back in the evening. अब वो कहता है मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं मिल्क भी पीता हूँ और साथ साथ में क्या करता हूँ, ग्रास भी खाता हूँ. और मेरी मम्मा कहाँ जाती हैं, वो काम पे जाती हैं, फिर वो कब आती हैं, शाम को वापस आती हैं काम करके. There were 6 young colts in the meadow besides me. They were all older to me. I used to run with them and had great fun. We used to gallop all together round the field as hard as we could go. At times our play was rather rough. They would frequently bite and kick as well as gallop. One day when there was a lot of kicking, my mother whined to me to come to her. She said, "Listen carefully to what I am going to say. The colts are also good colts, but they are cart horse colts. They have not learned manners. You are different from them. You have been well bred and well born. Both your father and grandfather had a great name in the area." अब वो छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी जब बाहर जाती है तो वो अपने जो बाकी के बच्चे हैं ना, जो हॉर्सेस के बेबी हैं, उनके साथ वो खेलता है. ठीक है, अब वो खेलता है तो उनकी हैबिट वो क्या करता है, अडेप्ट करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, किक करते हैं और एक दूसरे के पीछे चेज करते हैं, भागते हैं. तो फिर वो भी वही चीज़ कर रहा था. अब एक दिन उसे किक करते हुए उसकी मम्मा ने देखा और उसकी मम्मा ने उसे बुलाया और उसको बुलाकर प्यार से समझाया कि वो जो हॉर्सेस हैं वो अच्छे हॉर्सेस हैं, लेकिन उनमें कुछ मैनर्स ऐसे हैं जो तुम्हें अडेप्ट नहीं करने चाहिए, जैसे कि तुम्हें भी किकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए. तुम एक वेल फैमिली से बिलोंग करते हो. तुम्हारे जो दादाजी, तुम्हारे जो पापा जी थे, वो बहुत ही अच्छे थे, वो बहुत अच्छे घोड़े माने जाते थे. योर ग्रैंडफादर वॉन 2 cubs at the new market races. Your grandmother had a very sweet temper to any horse I ever knew. And I think you have never seen me kick or bite. I want you grow up gentle and good and never learn bad ways. Do your work with a good will. Lift your feet up well when you trot. Do not kick or bite even in play. अब जैसे आपकी मम्मा समझाती है कि बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, वैसे ही उस छोटे से हॉर्स को उसकी मम्मा समझा रही थी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बच्चों देखो कैसे रेस में कब जीता था, तो तुम्हें भी उन्हीं की तरह बनना है, एक महान हॉर्स बनना है. तुम्हें ये छोटी छोटी आदतें नहीं अडेप्ट करनी चाहिए. वो उससे पूछती है, क्या तुमने मुझे कभी बाइट करते हुए या किक करते हुए देखा है? नहीं ना, इसीलिए तुम्हें भी किक और बाइट नहीं करनी चाहिए. I never forgotten my mother's advice. I knew she was a wise old horse, and our master also loved her and called her pet. Her actual name was Duchess. Our master was a good and kind man. He gave us food and lodging. He always spoke kindly to us as he did to his little children. We were fond of him, and my mother loved him very much. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. He would pat and stroke my mother's and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" I was dull black, so called me Darky. He would give me a piece of bread, and sometimes he brought a carrot for my mother. All the horses liked him, but I think we were his favorites. My mother always took him to the town on a market day in a little gig. अब वो कहता है मैंने अपनी मम्मी की बातों को क्या रखा, ध्यान में रखा और उन्हें कभी भी मैं नहीं भूला, क्योंकि वो कहता है मुझे पता है मेरी मम्मा जो है बहुत बुद्धिमान है और बहुत वाइज लेडी है, वो कभी भी मुझसे कोई गलत बात करने को नहीं कहेगी, हमेशा मुझे क्या करेगी, अच्छी सीख देगी. अब वो कहता है मेरा मालिक जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, हमें अच्छे से क्या करता है, ट्रीट करता है. मेरी मम्मा के लिए कैरेट लेके आता है, मेरी मम्मा भी उसे बहुत प्यार करती है. ठीक है, और जब भी वो मेरी मम्मा के लिए कैरेट लेके आता है, वो मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेके आता है, जिसे मैं क्या करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ. Dick, a plug boy, would sometimes come into our field to pluck blackberries from the hedge. When he had finished eating, he threw stones and sticks at the colt to make them gallop. We did not mind it, for we would gallop off. At times a stone would hit and hurt us. One day, as usual, he was at this game. He did not know that the master was watching him from the next field. The master jumped over the hedge in a snap, caught him
by the arm and gave him such a box on the ear that made Dick cry with pain. Bad boy, he said angrily. Bad boy to chase the colt. This is not the first time, nor the second time, but it shall be the last there. Take your money and go home. I shall not want to see you on my farm again. So we never saw Dick any more. Old Daniel, the man who looked after the horses, was as gentle as our master, so we were well off. अब वो एक दिन की बात बताता है कि एक लड़का था जिसका नाम था डिक, ठीक है। वो वहाँ पे आता है, उसको चेरीज वगैरह चाहिए होती थी, पेड़ से वो तोड़ता था और उन्हें खाता था। और फिर क्या करता था, जो फार्म था ना, फार्म के बाड़े में खड़ा होकर वो क्या करता था, हॉर्सेस को पत्थर मारता था, उन्हें स्टिक्स फेंक कर मारता था कि तुम चलो भागो और रन करो। अब हॉर्सेस भी वही करते थे, वो उसे देख करके क्या करते थे, भागते थे, रन करते थे। उन्हें देख के वो बहुत खुश होता था, ताली बजाता था, और ये काम वो डेली करता था, ठीक है। कभी कभी पत्थर उन हॉर्सेस को लग भी जाता था, क्योंकि अब वो भी तो, उनके अंदर भी फीलिंग होती है, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, तो उन्हें वो पत्थर लग जाया करता था, उनको हर्ट होता था, उन्हें भी पेन होता था। अब एक दिन उनका मास्टर एक खेत से उस बॉय को देख रहा होता है, उस शरारती बॉय की वो हरकतें देख रहा होता है, और पीछे से चुपके से जाता है और उसके कान पकड़ लेता है, और इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसके कान में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। फिर वो उसे ये एहसास कराता है, देखो तुम्हें भी दर्द हुआ है ना, तो इस तरह से तो तुम स्टोन फेंक रहे हो हॉर्सेस के ऊपर, उन्हें भी तो दर्द होता होगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो और यहाँ पे दोबारा मत आना, अगर तुम दोबारा आए तो अच्छा नहीं होगा। तो डिक जो था वो वहाँ से चला जाता है और कभी वहाँ पे नज़र नहीं आता। तो हॉर्स कहता है मेरा मास्टर जो था वो इतना अच्छा था कि उसने हमारी केयर करी और हमारे बारे में सोचा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसे हम इंसानों को दर्द होता है, वैसे एनिमल्स को भी दर्द होता है, पेन होता है। हमें उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें स्टिक वगैरह से बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उन्हें लव करना चाहिए, उन्हें खाना देना चाहिए जब भी आपके पास अवेलेबल हो। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।